সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। ধসপ্রবণ এলাকায় পুনর্বাসন প্রকল্পে বাধা তৈরি করছে বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার জামুরিয়ার শ্রীপুর এরিয়া স্টেডিয়ামে প্রকল্প উদ্বোধন, শিলান্যাস ও পরিষেবা প্রদানের মঞ্চ থেকে এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, রানীগঞ্জের ধসপ্রবণ এলাকা আছে, আমরা ৪৫,০০০ ঘর বানাচ্ছি। আমার কাছে খবর আছে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস অনেক সময় বলছে ঘর নেবেন না। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের কথা শুনবেন না। এরপরে পুনর্বাসন প্রকল্পে রানীগঞ্জের বাসিন্দাদের সহযোগিতা চান তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিরোধী দলগুলি। সিপিএম নেতা বংশগোপাল চৌধুরীর কথায়, পুনর্বাসন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে আমাদেরই জন্য। তৃণমূল সরকার প্রথম ক্ষমতায় আসার পরে পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ টাকা ফেলে রাখা হয়েছিল ৫ বছর, তাই এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতা সভাপতি সিংহ এবং কংগ্রেস নেতা তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকলের জন্য বক্তব্য রাখছেন। এখানকার জেলা শাসক শশাঙ্ক, পুলিশ কমিশনার মিনা, আমার কলি গৌরব বিশ্বাস, মলয় ভট্ট, ইন্দ্রনীল সেন, জিতেন তিওয়ারি, দাসু, বিধান উপাধ্যায়, উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, তাপস ব্যানার্জি, আমাদের দুর্গাপুরের দিলীপ অগস্তি, মেয়র বিশ্বনাথ কারিয়ার, সাংসদ সুনীল মণ্ডল, অলোক মাঝি, আমাদের নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আমাদের সহ উপাচার্য বিসি এখানে আছেন, সাধনবাবু, উপস্থিত আরো অন্যান্য সকল অতিথিবৃন্দ, মলয় ঘটক এবং আমার সমস্ত গ্রামসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, ব্লক, লোকপ্রসার শিল্পী, আইসিডিএস, আশা, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সংখ্যালঘু দপ্তর, এসসি এসটি, ওবিসি থেকে শুরু করে জেনারেল কাস্ট, টিচার্স, প্যারা টিচার্স থেকে শুরু করে সিভিক ভলেন্টিয়ার, হোমগার্ড, কনস্টেবল, আইসি থেকে শুরু করে বিডিওরা থেকে শুরু করে সকল ডিপার্টমেন্টের সকলে এবং আমার কৃষক এবং শ্রমিক মজদুর সব ভাই এবং বোনেরা, আমি আপনাদের সকলকে দুর্গা পুজোর অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, কালী পুজোর অভিনন্দন জানাই, দীপাবলির অভিনন্দন জানাই, ছট পূজার অভিনন্দন জানাই, গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই, হযরত মুহাম্মদের নবী দিবস হয়ে গেল, অভিনন্দন জানাই। আদিবাসীদের অনেক উৎসব হয়, করম উৎসব, ফুল উৎসব থেকে শুরু করে আরো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তাদের সকলকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। मैं आप लोगों को छठ पूजा का मुबारक देने चाहती हूँ, दीपावली को भी मुबारकबाद देने चाहती हूँ। आपका छठ पूजा के लिए हम बंगाल में भी छुट्टी डिक्लेयर किया है। आपका बिहार में अगर दुर्गा पूजा का छुट्टी 1 दिन होता है, लेकिन हमारा इधर में आपका छठ पूजा के लिए 2 दिन छुट्टी होता है। इसी के लिए होता है कि चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, हम भी अच्छा से बनाते हैं। আপনারা জানেন আমরা দুর্গা পুজো যখন করি, কালী পুজো করি, গুরু নানকের জন্মদিন পালন করি, নবী দিবস পালন করি, ঈদ মুবারক করি, বড়দিন করি, আদিবাসীদের উৎসব করি, ছাত্র যুব উৎসব করি, সেই রকম মনে রাখবেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই। এই हिंदुस्तान का एक ही जगह है बंगाल में, जिसपे चाहे बंगाली हो और हिंदी भाषी हो, एक साथ में एक कट्टा होके हम लोग रहते हैं। खाली चुनाव के लिए बंगाली हिंदी भाग बंटवारा कर दो,
ये हम कभी नहीं करते हैं। हम हर तरह हर दफे हम सबको साथ एक साथ में मिलजुल के रहता है, ये हमारा देश का परंपरा है। মনে রাখবেন এটা আমাদের সবচেয়ে বড় পরম্পরা। আসানসোল নতুন জেলা পেয়েছেন। আসানসোলের মা ভাই বোনেরা আমার, জামুরিয়ার মা ভাই বোনেরা আমার, রানীগঞ্জের মা ভাই বোনেরা আমার, কুলটির মা ভাই বোনেরা আমার, বারাবণীর মা ভাই বোনেরা আমার, আসানসোলের মা ভাই বোনেরা আমার, জেনে রাখবেন आसनसोल जिला नया जिला कौन दिया है? हमारा सरकार दिया है, पहले कोई नहीं दिया है। आसनसोल জেলায় মনে রাখবেন মাল্টি সুপার হাসপাতাল করে দেওয়া হয়েছে, আসানসোল স্টেডিয়াম ভালো করে দেওয়া হয়েছে, স্টেট গভর্নমেন্টের প্রথম হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট আসানসোলে হয়েছে, আসানসোলে জেলা আদালত তৈরি হচ্ছে, আসানসোলে আইটিআই হয়েছে, পলিটেকনিক হয়েছে, স্টেডিয়াম হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে, কৃষিতীর্থ হয়েছে, কর্মতীর্থ হয়েছে, কোল্ড স্টোরেজ হয়েছে, আইসিসিউ হয়েছে, এইচডিইউ হয়েছে, फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक सेंटर হয়েছে, हिंदी कॉलेज भी हो रहा है, हिंदी कॉलेज होएगा ऑलरेडी, हिंदी कॉलेज भी आपको आसनसोल में हम कर दिया है। और आसनसोल में एक पता है कि 10% का अधिक जो जगह में हमारा उर्दू पॉपुलेशन है, उसको लिए उर्दू लैंग्वेज को और हिंदी भाषी को लिए भी हिंदी लैंग्वेज को हम लोगों ने हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का हम लोग दरवाजा दिया है। নকশালবাড়িতেও হিন্দি কলেজ হয়েছে, বানারহাটেও হয়েছে, उर्दू एकेडमी হয়েছে। आसनसोल जिला में एक एयरपोर्ट बना दिया, ऑन्डल एयरपोर्ट, जो आने वाला दिन बहुत बड़ा काम पे आएगा। ऑन्डल एयरपोर्ट বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের নামে করা হয়েছে, কারণ নজরুল ইসলামের জন্ম চুরুলিয়াতে, মনে রাখবে, তাই করা হয়েছে। नजरुल एकेडमी पास दिए देखते पाबेन अनेक काज करा हुए। आसनसोल में एयरपोर्ट हुआ है, कॉलेज हुआ है, यूनिवर्सिटी हुआ है। आसनसोल में क्या नहीं हुआ है? होटल इंस्टीट्यूट हुआ है, नया कॉर्पोरेशन बना है, नया म्यूनिसिपैलिटी बन रहा है, नया फ्लाईओवर हो रहा है, नया रास्ता तैयार हो रहा है। क्या नहीं हुआ है? बहुत सारी चीज, नया जिला हुआ है, नया अदालत हुआ है, नया इंस्टीट्यूट हुआ है। हम लोग नया नया बहुत सारे काम आसनसोल में कर दिया है। इसको एडजेसेंट देखो, धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, जाके पूछो क्या काम हुआ है, उधर में बीजेपी का गवर्नमेंट है, कुछ नहीं है। छोड़ के और कुछ नहीं होता है, खाली दंगा बनाता है, दंगा फसाद करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। काम करना जिसको नहीं आता है उसको क्या बोलता है? नहीं है जिनको उभरते सूरज पर और टूटते हुए तारों के बात करते हैं। कोई काम नहीं आता है, कोई काम आता ही नहीं है उसका, तो काम कैसा करे? खाली दंगा फसाद बना के चाहते हैं कि आसनसोल में गड़बड़ हो। आसनसोल में गड़बड़ होने से आम जनता को काम कैसे होगा? आसनसोल में कितना इंडस्ट्री बनाया, डीवीसी को फिर हम 4000 एकड़ जमीन दिया है उसको इंडस्ट्री एक्सपांशन करने के लिए। बानपुर इसको में नया एयरपोर्ट जो रीजनल कनेक्टिविटी में आ रहा है। आपका आसनसोल में इसका नजदीक में बीरभूम है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। মনে রাখবেন এখানে পাঁচুমি আছে, সারা বিশ্বে द्वितीय बृहत्तम कोयलार खनि होच्छे। लाखों करीब लोगों का काम होगा एंसेलरी में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क दिया है, दुर्गापुर में एमएसएमई कितना हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारे हुआ है। कितना रास्ता बनाया है, बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। आने वाला दिन भी हम करते जाएंगे, लेकिन ये दफे आपका पास हमारा विनती है, जो भी मर्जी कहने दो, लेकिन हमारा सरकार का साथ, पूरा भरोसा का साथ
विश्वास का साथ आपको काम पे ध्यान रखना है। हमारा सरकार ही आपका काम करेगा और कोई नहीं करेगा। रानीगंजे আমি মা ভাই বোনদের কাছে আবেদন করব, रानीगंज में मेरे को मिनती होगा, उधर में धस प्रवण एरिया है, धस प्रवण एरिया जे कोनो समय धस नामते पारे। हम लोगों ने 45,000 घर बना रहा है, 45,000 বাড়ি আমরা তৈরি করছি হাউसिंग डिपार्टमेंट থেকে। आपका अपना के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका जिंदगी बचाने के लिए इसको साथ देना जरूरी है। यदि अपना साथ ना दें, कभी भी अगर धस हो जाएगा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और बहुत साल से इसका पूरा इंडिकेशन है। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব হাত জোর করে এবং জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেও বলবো এই কাজটা ইমিডিয়েট করতে এবং মানুষকে সাথে নিয়ে। मेरे को पास खबर है बीजेपी का नाम पे, कभी सीपीएम का नाम पे और कभी कांग्रेस का नाम पे कहते हैं आप मत जाओ, वो हाउसिंग आप मत लो। अरे मत लो तो ठीक है, लेकिन जब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तो क्या करेगा? अगर उसका एरिया में आप बैठा रहेगा, कभी भी भूकंप आ जाए तो धस हो जाए तो पूरा एरिया नष्ट हो जाएगा, हजारों लाखों करीब लोगों को मृत्यु हो जाएगा। बीजेपी का बात मत सुनिए, सीपीएम का बात मत सुनिए, कांग्रेस का बात भी इधर में मत सुनिए। आपका जिंदगी बचाइए, हम आपका साथ में है, आपका ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। आपका साथ मिलकर ही हमें काम करने चाहती हूँ, जैसे आपको भी जिंदगी बर्बाद ना हो। सरकारी खर्चा में आपको जो जगह है आपको पुनर्वासन हम कर देंगे, सरकारी खर्चा में आपको घर बना देंगे, जैसे आप अच्छा रहे जिंदगी भर। कभी सोने का टाइम रात में सोने जाना है तो डर ना आपको लगे कि हमारा कभी भी धस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। এটা আপনাদের করতে হবে। দুর্গাপুরের ডিপিএল को আমরা রিস্ট্রাকচারিং করব, कारण दुर्गापुर डीपीएल ना तो बात में ना। आसनसोल में भी विद्युत का सेंटर करने के लिए हम लोग आज भी 2-3 विद्युत का सेंटर ओपन करने के लिए इनॉग्रेट किया है। आज भी 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इनॉग्रेट किया है। आज भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने किया है। हमारा अभी इधर में जिला परिषद का सभापति सुभद्रा बाउरी हुआ है और हमारा इधर में जो समीर बाबू जो है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी है। एक साथ में ग्राम सभा को लेकर, पंचायत को लेकर, जिला परिषद को लेकर, कॉर्पोरेशन को लेकर काम करें हम चाहते हैं। रानीगंज के लिए, जमुरिया के लिए, रानीगंज के लिए तो हम नया प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे नया रानीगंज बन जाएगा। दूसरी बात यह है, कुल्टी में आपका पानी का प्रॉब्लम है, जमुरिया में है, आपका बहुत सारे जगह में है। मैंने म्यूनिसिपैलिटी को बोला, हमारा गवर्नमेंट से भी इसको कर दिया, हमने बहुत सारे कर दिया, फिर आने वाला दिन भी करना है, जैसे इधर का लोग कोई बर्बाद ना हो जाए। आसानसोल इंडस्ट्रियल बेल्ट अनेक इंडस्ट्री तैरी हुए पानागढ़े, हम आसानसोल का चेम्बर्स को, रानीगंज का चेम्बर्स को भी बधाई देने चाहूंगी। वो लोग भी हमारा साथ एक साथ होकर काम करते हैं। हमारा किसान भाई बहन जो है, কৃষকদের জন্য আমি বলি বর্ধমান জেলা সবচেয়ে বেশি কৃষি নির্ভর। আপনারা আমাদের খাইয়ে পরিয়ে রাখেন। আপনাদের বলি কৃষকরা জেনে রাখুন, কৃষি জমির খাজনা আমাদের সরকার মুকুব করে দিয়েছে। কৃষি জমিন के लिए कोई खाजना कोई टैक्स आपको नहीं देने पड़ेगा, আপনাদের দিতে হবে না। আর একটা মনে রাখবেন, কৃষি জমি যখন মিউটেশন করা হয় तक एक टाका लगतो। कृषि जमी म्यूटेशन का फीस भी हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, तो कृषि जमी म्यूटेशन के लिए भी आपका कोई रुपया नहीं होना चाहिए। মনে রাখবেন, আপনার এলাকায় আরো নতুন উৎপাদন হোক, একদিকে ইন্ডাস্ট্রি আর একদিকে কৃষি ভালোভাবে চলুক। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা জেনে রাখবেন, আমরা 1,70,00,000 ছেলে মেয়েদের স্কলারশিপ দিয়েছি এবং সংখ্যালঘু দপ্তর আমরা মাইনরিটির কাজে সারা দেশের নাম্বার 1, আমরা 1 নম্বরে আমরা সমস্ত কাজ করি আপনাদের সকলকে দিয়ে।
আমার ইমাম মুয়াজ্জিনদের আমার অনেক সালাম। তারা আমাকে অনেক কাজ করে এবং তারা আমাকে অনেক সাহায্য করেন হেলথের ক্ষেত্রে। ডেঙ্গু হোক, ম্যালেরিয়া হোক, चाहे पोलियो हो, चाहे हम का टीका हो, हर দ্বারা তার ও লোক हमको मदद करते हैं। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার হিন্দু ধর্মেও যারা আছেন, গুরুদ্বারা আছে, গির্জা আছে, মন্দির আছে, মসজিদ আছে, আমি সবাইকে বলবো সরকারি কাজে সাহায্য করুন। आपको एक गवर्नमेंट दिखाइए, একটা সরকার আপনারা আমাকে দেখান যেটা হচ্ছে 2 টাকা কিলো চাল, प्राय हमारे राज्य 8 कोटी लोग 2 टाका किलो चावल पाए। मिलता कि नहीं मिलता? चावल 2 रुपया के जी मिलता कि नहीं मिलता? चावल मिलता है 2 रुपया के जी। बाहर से हम कितना रुपया में खरीद करते हैं? 25-26 रुपया में, लेकिन हम देते हैं 2 रुपया में। तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है 1 केजी चावल में 23 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता है घर से। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा से रहे। सब दिते ना पारलेও মা ভাই বোনেরা আমার একটু মোটা ভাত, একটু মোটা কাপড় তো আমরা দিতেই চাই। আমার কন্যাশ্রী মেয়েরা আগে ছিল শুধু স্কুলে 750 টাকা, বাড়িয়ে এখন করা হয়েছে 1000 টাকা। 18 বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে গেলে, বিয়ে না করলে সে পাবে 25,000 টাকা। কলেজেও কন্যাশ্রী করা হয়েছে K2 এবং ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়বেন ইউনিভার্সিটিতেও K3 করা হয়েছে। অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে আর্টসের জন্য পাবেন 2000 টাকা, সায়েন্সের জন্য পাবেন 2500 টাকা। কন্যাশ্রী यूनिवर्सिटी को देওয়া হয়েছে। और आज जितना भी गर्ल चाइल्ड है बंगाल में सरकारी इंस्टीट्यूट में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जितने भी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, जो भी हो, सब कन्याश्री कर दिया। हम जितना भी हमारा गर्ल चाइल्ड है सबको लिए कन्याश्री बना दिया। वो पूरा स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। और जब उसको 18 साल होगा, अगर शादी नहीं करके पढ़ता है तो 25,000 रुपया उसको अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सरकार डाल देंगे। फिर और एक स्कीम है, उसका नाम है रूपश्री जिनेरापुर। 1,20,000 টাকা যাদের ফ্যামিলি ইনকাম, তাদের বাড়ি থেকে যদি গভর্নমেন্টকে দরখাস্ত করে বলে, ভিডিওকে বা মিউনিসিপ্যালিটিকে বা পঞ্চায়েতকে বা কর্পোরেশনকে যদি বলে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না, गवर्नमेंट ताके 25,000 টাকা देवे। এটা হচ্ছে রূপশ্রী स्कीम। 25,000 रुपया हम शादी में देते हैं। जब बेटी का शादी होता है, अगर उसका मंथली इनकम 1,20,000 रुपया का अंदर हो तो गवर्नमेंट को पूछने से गवर्नमेंट उसको भी रूपश्री के लिए 25,000 रुपया दे देगा। ये हमारा रूपश्री स्कीम है। সবুজ সাথী আমরা সাইকেল দিচ্ছি সবাইকে, সংখ্যালঘুরাও পাচ্ছেন, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব স্কলারশিপ পাচ্ছেন, সাইকেল পাচ্ছেন, কন্যাশ্রীরাও পাচ্ছেন, আমাদের ছেলেরাও পাচ্ছেন, সবাই পাচ্ছে। মনে রাখবেন কৃষকদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে, কৃষি ঋণ মুকুব করা হয়েছে। मजदूर भाई और बहनों, एक हम लेबर डिपार्टमेंट से एक काम किया है। আমাদের একটা স্কিম আছে, এর নাম হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা স্कीम। मौलाय घटक जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, इसका काम क्या है आपको पता है? अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई ऑटो चलाते हैं, अगर कोई टोटो चलाते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अगर कोई दर्जी है, अगर कोई घर का काम करते हैं, अगर कोई लैंडलेस लेबर हो, अगर कोई दुकानदार हो, सबके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया। क्या स्कीम? आप 25 रुपया मंथली देंगे तो गवर्नमेंट आपको लिए 30 रुपया देंगे। ऐसा करके 60 साल तक जब होगा आपको पेंशन मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा। आपका बेटी का शादी में तनख्वाह मिलेगा। हर साल आपको लड़का लड़की को पढ़ाने के लिए 4,000, 6,000, 8,000 ऐसा रुपया भी मिलेगा। अगर इसमें 60 साल का पहले कोई मर गया काम करते करते तो उसको लिए, अगर इनसे कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा
तो फिर 10 लाख रुपया मिलेगा, और ऐसे नेचुरल डेथ होगा तो उसको भी 50,000 रुपया मिलेगा, उसको हेल्थ के लिए भी पैसा मिलेगा। आप सब सामाजिक सुरक्षा बनाइए, सामाजिक सुरक्षा बनाइए। इवेन আমার যারা লোকপ্রসাদ শিল্পী ভাই বোনেরা আছে তারাও করতে পারে। আপনারা যারা লোকপ্রসাদ শিল্পী আছেন, আপনি 25 টাকা দিলে গভর্নমেন্ট আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে 30 টাকা দেবে, এবং আপনার সারা জীবন একেবারে গ্যারেন্টি। মনে রাখবেন, কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার যা गवर्नमेंट के है, कैजुअल जरा गवर्नमेंट আছে, हमारा सरकार उसको लिए 60 साल कर दिया है चाकरी के लिए, नौकरी के लिए। कैजुअल वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है हम 60 साल कर दिया है। और एक बात है कि हमारा मजदूर के लिए हमारा हर तरह चिंता होता है। थोड़ा जूट इंडस्ट्री है, उसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें मदद करने के लिए। चाय बागान में भी हम खाली 47 पैसा में चावल देते हैं। ऐसे चाय बागान बंद होने का बाद 3 महीना का बाद हम 1,500 रुपया उसको देते हैं, उसको मदद करने के लिए। ऐसे हमारा जो लोक पोशाक शिल्पी 2 লক্ষ আছে আমাদের, আমি বলেছি তাদের সব ডিপার্টমেন্ট বিজ্ঞাপনে কাজ করাবে। তারা যেমন 1000 টাকা করে মাসিক ভাতা পায়, তেমনি সরকারি সব কাজে তাদের কাজে লাগাবে, যাতে তাদের একটা টাকা হয়। আইসিডিএস আশা যারা আছেন, আশার মেয়েদের মাইনে বন্ধ করে দিয়েছিল টোটালটাই। আমরা এখন আশার মেয়েদের 3000 টাকা করে শুধু গভর্নমেন্ট দিই, প্লাস অন্যান্য জায়গার কাজ করে পরে আরো অনেক টাকা তারা পায়, 6-7 হাজার টাকার মতো ইনকাম করে। आईसीडीएस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 90% देते थे, अभी तो 60% विड्रॉ कर लिया हमारा स्टेट से। उसको लिए भी हम 1000 तक का बढ़ाया है। আমাদের 1 লক্ষ সিভিক ভলান্টিয়ার্সকে চাকরি দিয়েছি আমরা, তারা পেত 3000 টাকা, এখন 8000 টাকা হয়ে গেছে। মনে রাখবেন, আমাদের ইমামরা পায়, মুয়াজ্জিনরা পায়, আমাদের যারা এমনকি আমাদের প্যারা টিচার, কন্ট্রাকচুয়াল টিচার যারা ছিলেন, প্যারা টিচারদেরও মাইনে বাড়ানো হয়েছে, কন্ট্রাকচুয়ালদেরও মাইনে বাড়ানো হচ্ছে। সুতরাং এই ধরনের অনেক কাজ আছে। আমার অনেক প্রাণী মিত্র ছিল, অল্প কাজ, ছোট্ট কাজ, 400 টাকা পেত বামফ্রন্টটা বলে, আমরা ওদের 1,500 টাকা করে দিয়েছি। এইরকম অনেক কাজ আছে যেগুলো আমরা করি। আমি আসানসোলবাসীকে এই কথা বলতে চাই, আসানসোল নতুন জেলা হয়েছে, আপনারা সব পেয়েছেন, সম্মানের চূড়োয় আছেন আপনারা, সসম্মানে কাজ করুন। আগামী দিন মনে রাখবেন, আসানসোলের সাথে ঝাড়খণ্ডের সম্পর্ক আমরা ভালো করব, এবং তৃণমূল কংগ্রেস ঝাড়খণ্ডের অনেকগুলো সিটে আমরা এবার লড়াইও করবো, ঠিক করেছি। ঝাড়খণ্ড ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকবো, আমরা ভালো থাকলে ঝাড়খণ্ড ভালো থাকবে। ধানবাদ এক সময় আমাদের रेलवे जोन रोड डिवीजन ছিল। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी कभी कभी बॉर्डर से आके माथा में फैक्ट्री लगा के और एक हाथ में झंडा और एक हाथ में डंडा लेके गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में पावर में रहते हैं तो जनता को सब लूट लेता है। बैंक से लोन नहीं मिलता है, बैंक का रुपया नहीं है, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। देश का यही हाल है। ये हाल बदल दो, बदल दो, बदल दो, दिल्ली को बदल दो। ये मेरा अब नारा आपको भी देना चाहिए, आपको हिंदी भाषियों को देना चाहिए। हमारे सकल के बोलबो, हिंदू भाषा को कौन नहीं पसंद करते हैं? मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हम बीजेपी का माफिक नहीं हूँ। हमें हिंदी है तो क्या है, हिंदी मेरा वतन है, हमें हिंदी है, हम हिंदू धर्म का है, हम दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं। क्या हमारा मुस्लिम भाई हमारा काली पूजा में नहीं आते हैं, दुर्गा पूजा में नहीं आते हैं? हम हिंदी है इसी के लिए हम क्या हमारा इधर में मुस्लिम को नहीं रहने देगा? बंगाल में 30% माइनॉरिटीज भी है, ये ध्यान में रहना चाहिए। उनका रमजान में हम जाते हैं, वो हमारा दुर्गा पूजा में आते हैं। हम बड़ा दिन नहीं मनाते हैं, हम केक नहीं खाते हैं, हम क्या गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, हम क्या गुरुद्वारा का हलवा नहीं खाते हैं? एक क्या है, हर धर्म के लिए हर धर्म है। हम अगर छठ पूजा के लिए गंगा माई की पूजा करते हैं तो हम रमजान के लिए रोजा भी रखते हैं। क्या है इसका फर्क, क्या है? हम अगर गंगा पूजा में जाते हैं, गंगा माई की पूजा करके
हम सूर्य देवता को पूजा करते हैं, पूजा करके कहते हैं ओम नमो जवाक्षुम शंकर्षम काश्यप्यम महादुखी धंतरिं सर्व पाप घन पनतरस्मि दिवाकरम। हम सूरज देवता को पूजा करते हैं। छठ पूजा में अगर ठेकुआ नहीं आते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीका से गुरु नानक जी का जन्मदिन हो तो हलवा नहीं आते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हमें ईद होगा और समय का पायस नहीं आएगा तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा? हमारा दुर्गा पूजा होगा, अगर हमको पास कोई भोग नहीं आएगा तो क्या हमको अच्छा लगेगा? हम हर धर्म को एक साथ में पसंद करते हैं। अगर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो क्या हिंदू मुसलमान का साथ झगड़ा करेगा, मुसलमान हिंदू का साथ झगड़ा करेगा, पंजाबी इसका साथ झगड़ा करेगा, ईसाई का साथ झगड़ा करेगा, माँ बेटी में झगड़ा होगा, भाई बहन में झगड़ा होगा, तो क्या होगा? खाली खून गिरेगा, आंसू गिरेगा और कुछ नहीं होगा। इसी के लिए बताना है कि हमारा जिंदगी अगर कामयाबी करना है, जिंदगी काम से काम में लेना है तो जिंदगी एक सफर है। एक जिंदगी का नाम है रोशनी, जिंदगी का नाम है प्यार, जिंदगी का नाम है मोहब्बत, जिंदगी का नाम है एकता, जिंदगी का नाम है परंपरा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रोशनी चाँद से होता है, रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत दिल से होता है, बातों से नहीं, झूठा बात कहने से नहीं। इसी के लिए मोहब्बत से काम लीजिए, प्यार से काम लीजिए, दोस्ती से काम लीजिए, एकता से काम लीजिए, एक साथ में रह के काम लीजिए। भाई कोई सादा होता है, कोई काला होता है तो क्या है, कोई फरसा होता है तो हम उसको प्यार करेंगे और जो काला होता है उसको हम क्या निकाल देंगे। कोई छोटा होता है देखने, कोई बड़ा होता है तो क्या फर्क है? कोई बंगाली भाषा कहते हैं तो कोई हिंदी भाषा कहते हैं, कोई उर्दू भाषा कहते हैं तो कोई औसिकी कहते हैं, कोई आदिवासी का बात करते हैं तो कोई शेड्यूल कास्ट का बात करते हैं, कोई दलित का बात करते हैं तो कोई क्रिश्चियन का बात करते हैं। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, सब हम एक है, एक होकर हमको रहना चाहिए। আমি আজকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার কন্যাশ্রীর সমস্ত বন্ধুদের, আমার সবুজ সাথীর বন্ধুদের, শিক্ষাশ্রীর বন্ধুদের। আমি বিশ্বাস করি কন্যাশ্রী আজকে বিশ্বশ্রী, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই কন্যাশ্রীর ছেলে মেয়েরা একদিন দেশকে নেতৃত্ব দেবে। সবুজ সাথীর ছেলেরা, আমার সবুজ সাথীর বন্ধুরা একদিন দেশকে নেতৃত্ব দেবে। এই দেশ থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, গান্ধীজি থেকে শুরু করে, নেতাজি থেকে শুরু করে, ভগৎ সিং থেকে শুরু করে, আম্বেদকর থেকে শুরু করে, বিরসা মুন্ডা থেকে শুরু করে, রঘুনাথ মুর্মু থেকে শুরু করে, সমস্ত আমার বাউল ভাই বোন থেকে শুরু করে, ঠামসা মাধব থেকে শুরু করে, লোকশিল্পী থেকে শুরু করে, কিষান থেকে শুরু করে, মজদুর থেকে শুরু করে সবাই দেশ করেছে। এই দেশটাকে রক্ষা করা আমাদের কাজ। देश को बंटवारा करने मत दो, देश को टुकड़ा करने मत दो, हिंदुस्तान को बेचने मत दो। और बंगाल तो हिंदुस्तान को दिशा दिखाएगा, बंगाल दिशा दिखाएगा, बंगाल सबका साथ में है। और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, पहले यूनाइटेड इंडिया में हिंदुस्तान जब एक था तब बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही था। कलकत्ता उसका कैपिटल था, उसको राजधानी था। इसके लिए बिहार का साथ, झारखंड का साथ, उड़ीसा के साथ हमारा नेवार जो स्टेट है इसका साथ हमारा रिश्ता बराबर अच्छा है और अच्छा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की कहानी कहनी चाहूंगी। फिर मैं आप लोगों को कहनी चाहूंगी कि आपको जो भी मर्जी है, ये बात याद रखिए, आपका कभी कोई बुरा दिन ना आए ये हम चाहते हैं, खराब दिन যেন না আসে। যদি কোনোদিন কারো কোনো বিপদ হয় জানবেন কেউ না থাকলেও আমরা আপনার পাশে আছি। মা মাটি মানুষের সরকার, আপনাদের সরকার, মা মাটি মানুষের সরকার 7 साल में जो किया है आसनसोल के लिए और कोई नहीं कर सकता है, जो किया है बंगाल के लिए कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारे स्कीम हमारा है, अभी कोई मर जाने से भी हम 2000 रुपया देता है, कब्र देने के लिए भी देते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए भी देते हैं। ऐसा गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। মনে রাখবেন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে মোদের বাংলা ভূমি। মনে রাখবেন বাংলার কোনো তুলনা নেই।
बांग्लाय থেকে गर्वबोध करूं। और बांग्ला में रहने से हमारा हिंदी भाषी भाई बहन को भी हम कहने चाहूंगी, कोई आपका साथ हमारा फर्क नहीं है, हम आपको प्यार करते हैं, आप भी हमको प्यार करते हैं। बंटवारा मत कीजिए, किसी का साथ बात मत कीजिए। ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी का काम है असम से बंगाली खदाओ, असम থেকে मेरे मेरे खून করে, और गुजरात से बिहारी खिलाओ। हम ये नहीं चाहते हैं, हम बिहारी को खदाने से भी हम रुकेंगे, हम बंगाली को खदाने से भी हम रुकेंगे। हम आपका सबका साथ, इज्जत का साथ, इंसानियत के साथ, इंसानियत का इंसाफ के लिए है, था और रहेंगे भी। আমি এই কথা বলে আমার মা ভাই বোনেদের বলবো, বাংলার মাটি নিয়ে গর্ব করুন, গর্ব করে বলুন, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। মনে রাখবেন, গর্ব করে বলতে হবে, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गर्व करे बोलते হবে, साल फरोज का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाज हुए कतील में है। गर्व करे बोलते হবে, खुदी को कर बुला कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। गर्व करे बोलते হবে, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, इंशाल्लाह, जय जोहर। জহর খান বাঁধানো থেকে শুরু করে আদিবাসীদের জন্য আমরা অনেক কাজ করেছি। মনে রাখবেন, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, সুন্দরভাবে চলতে হবে। আর এই দেশটা গড়বার জন্য আগামী দিন বাংলা পারবে, বাংলা পথ দেখাবে। বাংলা চেয়ার চায় না, কিন্তু বাংলা মানুষকে কেয়ার করে। আর যারা দিল্লিতে ক্ষমতায় আছে, আরবিআই থেকে সিবিআই, মানুষ বলছে টাটা বাই বাই, অনেক হয়েছে, আর চলবে না, আর নয়, অনেক জুলুম করেছো, অনেক অত্যাচার করেছো। মানুষকে ভালোবাসতে শিখো, মানুষকে ভালোবাসো, দেখবে মানুষও ভালোবাসবে। আমি এটুকু বলে আমার মায়েদের সকলকে আমার অন্তরের প্রণাম, বয়োজ্যেষ্ঠদের আমার অনেক শ্রদ্ধা, সমবয়সীদের অনেক অভিনন্দন, ছাত্রছাত্রীদের আমার প্রাণ ভরা ভালোবাসা। ছাত্র এবং যৌবন অনেক কর্মসংস্থান হয়েছে, আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ আসছে। ভালো করে জোট বেঁধে কাজ করুন, অনেক সুযোগ আসছে, এই সুযোগ আপনারা পাবেন। মনে রাখবেন, নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হচ্ছে, পানাগড় থেকে একেবারে দুর্গাপুর হয়ে চলে যাবে, একেবারে বাঁকুড়িয়া রঘুনাথপুর পর্যন্ত দুপাশে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে। ওদিকে পাঁচমী হবে বীরভূমে। অনেক সুযোগ আছে, অনেক সুযোগ আছে, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। বাংলাটাকে ভালোবেসে নিজের মতো করে থাকুন, সব কিছু পাবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই, আর বিডিও এসডিও থেকে শুরু করে আইসি সবাইকে বলবো, মানুষের সাথে থাকুন, মানুষের পাশে থাকুন। আমি আমাদের যারা মিউনিসিপ্যালিটি, গ্রাম সভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ আছেন, তাদের সবাইকে বলবো, মানুষের সাথে থেকে কাজ করুন, মানুষের কাছে ছুটে যান, মানুষের পাশে থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।